Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 9 Information Technology, subject code 402. In our previous video, we have covered the session 1 of unit 2, that is spreadsheet applications. In this video, we are going to cover the session 2 of this unit, and actually this session contains so many topics, so we will cover this session in 2 parts. So let's start now. These are the various topics which we cover in this video today. First, we will discuss how to enter data in a worksheet. Now I am opening my Office Kelsey. This is my Open Office Kelsey, and here you can see कि first of all we will discuss how to enter data in a worksheet. अब we can enter the numbers, text and then formula also. Numbers you can write the text simply 34, 65, 23. These all are my numbers. Similarly, you can enter your text. Suppose I am writing the name Dhruv, Swati, Suman. So these are my text. These are my numbers. We can write the formula also. And in Excel, every formula starts with the equals to sign. In our next video, we will cover basic functions or formulas in OpenOffice Kelsey. But here we are just discussing how to write the basic formula in MS Excel. In OpenOffice Kelsey, every formula starts with equals to. Now suppose if you want to add 12 plus 15, so you just have to write equals to 12 plus 15 and press the enter key. It will give you the desired result. And if I want to do the calculation of 25 into 2, so you will not directly write 25 into 2. No. What you have to do? First of all, you have to press the equals to sign, then 25 into 2. Then you have to press the enter key. Means in a spreadsheet, if you want to do any calculation, so for that you have to press the equals to sign. Okay, now I am writing suppose 15 divided by 3. Before that I have to write the equals to also. So it is showing the result to me. In this way, we can write the numbers, text and formula. Now next topic is filling ranges and auto input. Now how to fill the range? Now see this very carefully. Suppose I tell you to write the counting here. Okay? If I tell you to write the counting till 10, you will definitely easy to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay? But if I tell you to write it to 50, it will take some time, but after 5 minutes you will be able to get it right. But if I will tell you to write it till 500, 50,000, a bigger number, so it will take time to enter those numbers to those series. So for this, Excel provide me the functionality of fill series. So ध्यान से देखना हम कैसे सीरीज को फिल करते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2. After writing this, you have to select these two cells. ठीक है? After selecting these two cells, place your mouse pointer here. ठीक है? अगर मैं इसको बाहर रखूंगी तो ये arrow symbol होगा. Place your cursor here. It will change into the plus sign. When it will get changed into the plus sign, just press your left mouse button and drag. उसके बाद आपको जहां तक काउंटिंग चाहिए हो within seconds you can write. See, I have filled it by with 128. ठीक है? I am repeating the steps again. Suppose you have to fill the series in a sequential manner. So I will write 1 and 2, then select these two. After selecting these two cells, place your mouse pointer here. When it will get changed into plus symbol,
जस्ट होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग योर सीरीज। ठीक है, अब जितना डिफरेंस आप 2 नंबर्स में लिखोगे इतना ही डिफरेंस ये बाकी की सीरीज में लेगा। सपोज अब मुझे अगर 15 की टेबल प्रिंट करानी है तो व्हाट आई एम राइटिंग 15 प्लस 15 30। फर्स्ट 2 नंबर लिखो सीरीज के, देन सेलेक्ट दीज 2 सेल्स एंड ड्रैग। ठीक है, आ गई 15 की टेबल। वो एक तरीके से क्या कर रहा है, सीरीज को फिल करेगा बेस्ड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन दीज 2। इफ आई विल राइट 20 here and 10 here और मैं इसको रिवर्स में सेलेक्ट करके फिर इसको ड्रैग करूं, मीन्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 20 माइनस 10, 10 माइनस 10 0, 0 माइनस 10। ठीक है, अगर एक स्मॉल डिफरेंस का ले लेते हैं, सपोज आई एम राइटिंग 20 and then 18. I have selected these two. Up instead of dragging it in the downward direction, drag it in the upward direction. So you will get the difference of 2 terms. Similarly, you can fill the series of days also. Now I have written Monday. Just select this, place your cursor here and drag. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आफ्टर संडे इट विल अगेन कंटिन्यू। अगर मैं इसको हाफ में लिखूंगी, मींस फॉर मंडे इफ आई विल राइट ओनली MON, तो व्हेन आई विल ड्रैग तो उसके वो फर्स्ट 3 लेटर्स ही आएंगे। सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर मंथ्स नेम आल्सो, और जरूरी नहीं है स्टार्टिंग ही लिखना। लेट्स राइट जुलाई हियर, सेलेक्ट दिस, प्लेस योर कर्सर हियर एंड देन ड्रैग। So July, August, September, October, November, December, like this. जहां तक आप ड्रैग करोगे you will get your series filled till there. Next function is auto complete. I am erasing all these contents now. Now see there auto fill content में क्या है। Suppose मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम्स लिखे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस। अब देखो जैसे ही मैंने S प्रेस किया वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि सोशल साइंस, बट अगर आपने यही लिखना है तो जस्ट प्रेस द एंटर की। दिस इज कॉल्ड ऑटो इनपुट। अब मैं क्या अगर मुझे इस ऑप्शन को ऑफ करना हो, या सपोज मैंने एक बार सब्जेक्ट लिख लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो व्हेन आई विल प्रेस द आई की तो वो मुझे अपने आप सजेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड ऑटो इनपुट। अगर मुझे ये नहीं लेना है तो जस्ट प्रेस द डिलीट की। इफ यू वांट टू टेक दिस एज योर इनपुट जस्ट प्रेस द एंटर की। टू टर्न दिस ऑप्शन ऑन एंड ऑफ, क्लिक ऑन दिस टूल्स मेन्यू, देन सेलेक्ट सेल कंटेंट्स, देन दिस ऑटो इनपुट। इफ दिस ऑप्शन इज ऑफ, अब मैंने इसको अनचेक कर दिया, सी हियर अब ये अनटिक है, तो अब जब मैं S प्रेस करूंगी या I प्रेस करूंगी वो मुझे सजेशन नहीं दे रहा है, सी। ठीक है, बट अब अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगी, क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, देन सेल कंटेंट्स एंड ऑटो इनपुट, अब ये मुझे सजेशन देगा। सो दिस फीचर इज कॉल्ड ऑटो इनपुट। लेट मी शिफ्ट इट टिल हियर because it is the part of that. ठीक है, तो now we have covered how to enter data in a worksheet and fill ranges we have done, auto input feature we have done. Now next is editing cell contents. Editing means कि उसमें कोई change करना। अब यहाँ पर suppose it's written information technology. Now अगर मुझे इसको change करना है to information and communication technology, there are 2 methods to do this. बेटा अगर आप इसको सेलेक्ट करके जस्ट डायरेक्ट लिखोगे तो क्या होगा, ये इरेज हो जाएगा। अगर सपोज मैं S को लिखूं और मैंने यहाँ संस्कृत लिखना है तो वो इरेज हो जाएगा बाकी का। अगर मुझे इसी में ही चेंजेस करने हैं तो there are 2 methods. First one is, actually there are 3 methods. First one is just select the cell in which you want to do the addition. Double click, जहां पर आपने चेंजेस करने हैं, प्लेस योर कर्सर देयर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
technology. Second method, place the cursor in that cell. This is your name books. यहाँ पर आप select करके कुछ भी लिख सकते हो जो आपने चेंज करना हो, ठीक है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स. जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करोगे तो वट एवर द टेक्स्ट इज रिटन इन दैट, वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होएगा. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड इज you have to use the shortcut key F2. When you will press the F2 key, you will get the cursor in the cell, place your cursor and do the changes. ठीक है. First method was that double click. Second method, you can write your additions in the name box, and third method is press the F2 function key. In this way we can do the changes or addition in the cell. अब नेक्स्ट देखो, हाउ टू डिलीट द कंटेंट्स. अब यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं. अब जैसे मैंने देखो ये तो टेक्स्ट लिखा है सिंपल, यहाँ पर मैं नंबर्स लिख लेती हूँ 24, 33, ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया साइंस और आई हैव रिटन योर नेम हियर. उसके बाद सपोज मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल्स टू 18 + 6 या फिर इक्वल्स टू 2 × 5, ठीक है. तो अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर रही हूँ. अब मैं कौन सा टॉपिक कर रही हूँ बेटा, हाउ टू डिलीट द कंटेंट्स. फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, I have selected these cells. Then press the delete key. When you will press the delete key, this dialog box will appear. अब इसमें ऑप्शंस देखो कौन से हैं, टेक्स्ट, नंबर्स, डेट एंड टाइम, फॉर्मूला, इस तरीके से. अगर मुझे सिर्फ देखो मैंने इसमें 3 चीजें लिखी है, नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूला. फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि वो किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, इक्वल्स टू से. अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट वाले बॉक्स के आगे टिक करूंगी और ओके पर क्लिक करूंगी तो सिर्फ देखो जो मेरा टेक्स्ट मैंने लिखा था वो डिलीट होगा, सारा डिलीट नहीं होगा. अब अंडू कर देते हैं, वापस से आ जाएगा. नाउ अगेन आई एम सेलेक्टिंग एंड प्रेसिंग द डिलीट की. अब मुझे टेक्स्ट नहीं डिलीट करना है. नाउ आई वांट टू डिलीट द नंबर्स एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. नंबर्स दोनों डिलीट हो गए. ये क्यों नहीं डिलीट हुए, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है. यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर रखा है, अपना एक्सेल का फॉर्मूला. अब अंडू करके वो फिर से आ गया. नाउ अगेन आई एम प्रेसिंग द डिलीट की. नाउ सपोज दिस टाइम आई वांट टू डिलीट द फॉर्मूलाज एंड टेक्स्ट. नंबर्स आई डोंट वांट टू डिलीट. तो देखो आपका टेक्स्ट भी डिलीट हो गया और फॉर्मूले भी डिलीट हो गए. और यू कैन जस्ट सिंपली, अगर आपको सारा ही डिलीट करना है, सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन डिलीट key and then click on this delete all option. When you will click on this delete all option and press the OK button, it will delete everything, including your text, including your formulas and including your numbers. Now moving on to the next concept, that is cut, copy and paste with the data. Suppose I am writing some random numbers here and I want to paste this data to another location. We are having two concepts, cut paste and copy paste. Cut paste is also known as moving data from one location to another location. First what you have to do, first I am doing the cut paste. तो जब भी हम cut paste करेंगे तो data at your original location will be removed from there and it will get pasted to another location. If we are doing copy paste, the data will remain at original location also, as well as it will get copied into that location where we want to get it pasted. First we will do the cut paste. We will select this text. There are two methods. First is either to press the shortcut key Ctrl+X for cut, Ctrl+C for copy and Ctrl+V for paste. Or you can do this from here also, cut, copy and paste, or you can do it from the edit menu, cut, copy and paste. So I am
selecting the cells, range of cell, edit पे जाकर कट, और जहां पर आपने पेस्ट करना हो प्लेस योर कर्सर देयर एंड एडिट एंड देन पेस्ट. सो उस लोकेशन से हट करके वो न्यू लोकेशन पर आ जाएगा. बट इफ आई वांट टू डू द कॉपी एंड पेस्ट, सेलेक्ट द टेस्ट. नाउ आई एम डूइंग इट फ्रॉम हियर, कॉपी ऑप्शन, पेस्ट. ठीक है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट में वो ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहेगा और जहां पर आप पेस्ट करोगे वहां पर भी रहेगा. I have selected it here, paste again, then again paste. मीन्स एक बार अगर आपने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया तो आप उसको कितनी भी टाइम्स जो है पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेल रेफरेंसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सेल रेफरेंसिंग क्या होता है कि सपोज एक टेबल क्रिएट करते हैं. यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस ऑफ ईच, मीन्स जो एक यूनिट का प्राइस है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल प्राइस. दिस इज योर यूनिट प्राइस. I am filling the data now. 1, 2, 3. Let's suppose 4 items we will take. Laptop, mouse, keyboard, and let's say CPU. Quantities 2, mouse 5, keyboard 4 and CPU 3. Unit price means एक लैपटॉप के प्राइस क्या है? Let's suppose 35,000. वन माउस का प्राइस है 150, वन कीबोर्ड का प्राइस है 250 एंड सीपीयू का लेट्स सपोज 650. तो अगर मुझे टोटल प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस जो यूनिट प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं. जैसे सिंपल मैथ्स में क्या करते हैं, अगर एक लैपटॉप का प्राइस 35,000 है तो 2, अगर क्वांटिटी 2 है तो प्राइस क्या होगा 35,000 इंटू 2. तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल्स टू, अब जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इस क्वांटिटी वाले सेल का नेम क्या है C2, तो आई एम राइटिंग इट हियर C2. अब मल्टीप्लाई करना है तो आई एम प्रेसिंग द मल्टीप्लाई की, और यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो D2. तो व्हेन यू विल प्रेस द एंटर की यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, अगर आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो you will get your formula here also कि what we have done equals to C2 into D2. अब देखो जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगी, I have selected this cell, I am placing the mouse pointer here, और मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया. ठीक है, अब देखो उसने फॉर्मूला अपने आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया. अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल में मुझे क्या लगाना चाहिए था, C3 इंटू D3, C3 इंटू D3. उसके बाद इस सेल पर क्या लगना चाहिए था, C4 इंटू D4, फिर C5 इंटू D5. मैंने फॉर्मूला तो अपना एक सेल पर लगाया, उसको मैंने ड्रैग किया, उसने अपने आप बाकी के कंसेप्ट्स उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. दिस इज कॉल्ड माय रिलेटिव रेफरेंसिंग. Basically, we are having 3 types of referencing: relative referencing, absolute referencing, and mixed referencing. ठीक है, we are having 3 types of referencing: relative referencing, absolute referencing, and mixed referencing. जो अभी हमने concept किया that is the relative referencing, कि वो अपने आप कैसे change करता है कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसके लेफ्ट साइड पर जो 2 सेल्स हैं उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो जब मैंने इसको ड्रैग किया उसने अपने आप जो है लेफ्ट साइड के उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. इसी तरीके से इस वाले के भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग. नेक्स्ट आपका आता है बेटा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई सेल का रो या कॉलम क्या करना चाह रही हूँ, फिक्स करना चाह रही हूँ, मीन्स उसमें चेंजेस ना हो. इसमें तो देखो अपने आप चेंजेस हो गए, C2 D2, C3 D3, C4 D4, ठीक है, C5 D5. बट इफ आई वांट कि उसमें चेंजेस ना हो
ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, डॉलर सिंबल। डॉलर मीन्स मुझे जिसको फिक्स करना है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में मेरा रो पार्ट भी फिक्स होगा एंड कॉलम पार्ट भी। रो पार्ट एंड कॉलम पार्ट बोथ आर फिक्स्ड। किस में होंगे दोनों फिक्स, आपके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। अब देखो, अगर मेरे को हर एक की क्वांटिटी क्या लेनी है, 2, तो मैं अपना फॉर्मूला क्या लगा दूंगी, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू, अब मुझे क्वांटिटी वाला फिक्स करना है, तो व्हाट आई विल राइट, $C $2, कि मुझे कॉलम भी फिक्स करना है और रो भी फिक्स करनी है। तो मैंने क्वांटिटी का जो सेल का नेम था C2, उसको क्या कर दिया, फिक्स, मल्टीप्लाई, और उसके बाद यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज D2। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये क्या करेगा, 150 इंटू 2, 300, क्योंकि जो मेरी क्वांटिटी है वो मैंने फिक्स कर दी है हर एक आइटम के लिए। यूनिट प्राइस हर एक का डिफरेंट है। अब कीबोर्ड का यूनिट प्राइस क्या है, 250। अब क्वांटिटी मैंने क्या फिक्स कर दी, 2, तो 250 इंटू 2, 500, देन 650 इंटू 2, 1300। तो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे, हर एक में किसको कर रहा है वो, 650 को 2 से। ऐसे अगर मैं इस पर चेक करूं तो क्वांटिटी को किससे कर रहा है, यूनिट प्राइस से। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होता है, आपका एक पार्ट फिक्स होगा, ओनली वन पार्ट विल बी फिक्स्ड। वो आपका वन पार्ट रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। इसको डिलीट करते हैं। अब नाउ आई एम राइटिंग इक्वल्स टू $C2। अब मैंने डॉलर किसके आगे लगाया, सिर्फ C के आगे, इनटू D3 जो मेरा क्या है, D2 जो मेरा यूनिट प्राइस का सेल नेम है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो अब देखो, जब मैं 50 पे डबल क्लिक कर रही हूँ, C तो मेरा क्या रह गया, फिक्स, क्योंकि मैंने C के आगे क्या लगा दिया था, डॉलर सिंबल। ठीक है, तो C3 इंटू D3। अगर आपको कोई एक पार्ट फिक्स करना हो तो दैट मीन्स वी आर डूइंग द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में दोनों पार्ट्स आपके क्या होंगे, फिक्स, डॉलर सिंबल के थ्रू। और रिलेटिव रेफरेंसिंग में आपका वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। So in this video we have covered all these concepts of this session. In our next video we will continue with the MS Excel के जो functions, formulas होते हैं, min, max, average कैसे find out करते हैं, that we will cover in our next video. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.